So hello everyone, welcome in this new video. In today's podcast we have Harsh sir with us. उन्होंने अपनी LLB जिंदल से करी, then he went to the US to pursue his LLM. उसके बाद वो चले गए Sweden to pursue his PhD. So this podcast is a gold mine of content. I'm telling you, even if you want to do internships, you want to write your SOP, how to shortlist college, everything. So on that note, let's start. Sir, let's divide this podcast into 3 segments. Okay. तो सबसे पहले तो आपके लॉ स्कूल में जो आपने इंटर्नशिप्स करी उनके बारे में मैं आपसे पूछूंगा. ठीक है. कि कौन कौन सी प्लेसेस पे करी और एडिशनल क्या क्या जगह हो सकती थी. ठीक है. सेकंड फिर आपके LLM फ्रॉम USA. ठीक है. कि स्टेट्स के अंदर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा. देन आपकी PhD इन यूरोप. उसके बारे में बात करेंगे. तो सर सबसे पहले बात करते हैं कि Amazon सस्टेनेबल फाउंडेशन इंटर्नशिप. तो सर वो कहाँ से मिली, कहाँ से पता पड़ा, क्या एरिया ऑफ वर्क था, क्या रहता है उसमें. So basically like what happened in my 4th year, हमारा environmental law course हो गया था, and after that one of our faculty forwarded an email to all of us कि ये summer school program आया हुआ है, तो anyone who wants to apply. तो मैंने देखा application, I went through the email and I went through the application. I filled the application form. General tha, why do you want to apply, what is your interest, what you have done in the past, like any experiences, and I filled my application was shortlisted and it was followed by an interview. And after that, like after 10 days or something, they sent me that your application was accepted, and they also provided 50% scholarship. That you'll be given, you'll have to pay like just half of it, and then rest will be taken care. So basically, Amazon Sustainable Foundation, it's an NGO who works with riverine communities, indigenous communities on the Amazon basis within the Brazil, and they have been working there for a long time. Virgilio Viana is the director of that NGO, and under that there are many different programs. So this summer school program was also created by few of the employees who are working under the Amazon Sustainable Foundation. So summer school work basically what it was for like 2 months, majorly for 1 month, and rest of the period I volunteered there and added some more work also. So basically it involves field work, empirical research work. What happens is you spend 2 days in Manaus is the closest airport in order to get into the rainforest. So you land at Manaus, you stay for 2 days in a hotel and do some activities on land, and then you're taken into the rainforest, and then after that you are there. So there is no network, no place to spend money, so phone, wallet, like सब छोड़ दो ये. वहाँ पे पब्लिक लेक्चर्स होते हैं आपके रोजाना मॉर्निंग में, तो यू गेट लाइक एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स फ्रॉम ब्राजील एज वेल एज इंटरनेशनली. तो ब्राजील में से वर्जिलियो वेना ही हिमसेल्फ गेव अ पब्लिक लेक्चर. देन वी हैड लेट थॉमस लवजॉय, known as a father of biodiversity, has worked also in Amazon a lot, and Jeffrey Sachs. So all of these guys used to come, and then like morning में हमारा session होता था, public lecture होता था, वो एक topic उठाते थे Amazon, environment, climate change इनसे related. फिर after lunch they used to take us into the rainforest. जो सिखाया हमें दिन में theoretically, वो practically forest के अंदर कैसे होता है, वो चीज़ देखने को मिलती थी. तो then like your knowledge basically experience, you are part of like the knowledge, तो वैसे extra like learning होती थी. And then later in the period evenings में हमारा indigenous communities होते थे, houses होते थे, तो we used to go to them, groups में जाते थे हम 3 groups में. हमारे साथ एक वो भी होता था, translator भी होता था, and we used to know way of life, like how they are surviving, how they have been living in the rainforest, why they prefer to live here and not go into the urbanization, and how they live sustainably. So वो learnings वहाँ से सीखते थे. तो it's like पूरा day से evening तक का schedule रहता था. And later in the period for 20 days I volunteered, I gave art class to like below 15 years kids also. I went to different communities, convinced their parents कि हाँ ठीक है class के लिए भेजना. So overall like it was a great learning experience, and like by living there for 2 months, working there, like अंदर से कुछ लगा कि like okay this is the field like I'll be good at, and I would like to pursue further on. अच्छा. So one thing over here is कि जैसे मान लीजिए आपको तो आपके प्रोफेसर ने बताया like via college group. So अगर मेरे को पर्सनल कैपेसिटी में वहाँ अप्लाई करना हो, या मैं जिंदल में नहीं हूँ, मैं किसी दूसरे कॉलेज में हूँ, तो उसका मोडस ऑपरेंडी क्या रहता है? Do they have a website or something? Yes, so Amazon Sustainable Foundation, they have a website, and even Amazon Summer School, they also have a website. Currently, after COVID, they have stopped, they have taken a pause, but I'm sure the program will be back again. Correct. So keep an eye out
एंड वेबसाइट चेक करते रहो तुम और अपने मिल आप जाएगा। मिल जाएगा 23 और 24 प्रॉब्ली दे विल हैव अ प्रोग्राम। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था इसके बारे में जब मैं आया था वापस 2014 में करके। अच्छा। वो लॉक टॉपर्स पे पब्लिश हुआ था। अच्छा, तो इफ अच्छा। एनीबॉडी वांट्स उसका लिंक हम ढूंढ के डाल देंगे हाँ डिस्क्रिप्शन में। हाँ हाँ ठीक है तो वो ठीक देख है लेना। सर। इसकी एवरेज कॉस्ट क्या आई थी आपकी, याद है आपको कुछ? हाँ सो बेसिकली फिर जैसे 50% ऑफ हो गया था मेरा, तो लाइक आई थिंक यहाँ ब्राजील दूर भी है इंडिया से, तो फ्लाइट एक्सपेंडिचर वो था 80,000 प्लस था। ठीक है। और 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मेरे को देना पड़ा था, तो उसके अंदर मेरा वो खाना पीना मोटा-मोटी 2 लाख रुपए के 2 लाख आसपास हो रुपए गया था। हाँ स्कॉलरशिप के स्कॉलरशिप हिसाब से हो गया और था। वो 2014 में था। एंड नाउ दीज पीपल हैव लाइक यू नो इंक्रीज फंड्स, और ये इनका मेन मोटो था कि दे एवरीवन हु पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम किसी तरीके से do आए। not pay anything. अच्छा Because that's why they started, but starting में they did not have much funds, so 50%, 30% ऐसे scholarship देते थे. But now I'm sure कि अगर candidate has requirement, valid requirement, उसे 100% off भी मिल सकता है, सिर्फ flight लेके जाना पड़ेगा उसे. नाइस नाइस ठीक है सर। सर इसमें आपको याद है कि इंटरव्यू में आपसे क्या क्वेश्चन पूछे थे, ऐसा रफ अगर कुछ याद हो तो? वही यानी like journal questions, Why you want like, to join? why you want to come here, why like what made you choose like कि Amazon इतना दूर है, why do you want to come here, और बाकी पुराने ऐसे एक्सपीरियंस क्या थे तुम्हारे जिससे तुम्हें लगता है, और या फिर आगे तुम क्या करोगे कि यहाँ पे चलो आ भी गए, जो भी सीखा तुमने ये तुम्हें आगे कैसे हेल्प करेगा, तो वो चीजें लाइक हाउ इट विल हेल्प यू बिल्ड योर फ्यूचर, तो ये चीजें थी। सर कमिंग टू द नेक्स्ट इंटर्नशिप, आपने इंटरनेशनल कंपैरेटिव ह्यूमन राइट लॉ प्रैक्टिसियम प्रैक्टिकम में वहाँ पे आपने दिल्ली में इंटर्नशिप की थी। हाँ। सो व्हाट वाज दैट, वहाँ पे क्या रहता है? तो ये बेसिकली मैं आया फिर वहाँ से, एंड 5th ईयर फर्स्ट सेम दिसंबर के बाद आई थिंक, हाँ तो उस समय दिस इज आल्सो अनदर जिंदल प्रोफेसर, ह्यूमन राइट प्रोफेसर थी वो फ्रॉम यूके, तो उसने बताया लाइक यू नो आई नो हर वेल, तो ऐसे ही मिलने गया था मैं, और शी टोल्ड मी कि लाइक ये विंटर के अंदर इंटर्नशिप है, अगर तुम चाहो तो लाइक यू नो अप्लाई कर लेना। हाँ। तो बेसिकली ये विलियम एस बॉयड लॉ स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ नवाडा, अच्छा एंड अपना स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जवाहरलाल नेहरू JNU, ये दोनों टाई अप करके ये प्रोग्राम करते हैं। तो इसमें क्या अच्छा। होता है कि कुछ लॉ स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी ऑफ नवाडा वाले वो यहाँ आते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स इंडिया के होते हैं, तो वो लॉ फील्ड के भी होंगे, इंटरनेशनल स्टडीज के भी होंगे, और अदर फील्ड्स के भी होंगे, ठीक है। तो वो आ जाते हैं, देन दोनों ग्रुप्स को मर्ज कर देते हैं। यहाँ पे फैकल्टी वहाँ से भी आती है और यहाँ की भी रहती है। बेसिकली मेरा जो था टाइम उस समय वी डिड फील्ड वर्क था, हमने वी इंटरव्यूड माइग्रेंट विमेन वर्कर्स in the outskirts of New Delhi and Haryana, and basically documented their human rights violations with respect to access to housing, वाटर एंड एजुकेशन, इन 3 चीजों पे था। तो 3 टीम्स बनाई हुई थी, एक वाटर पे काम कर रही थी, एक हाउसिंग पे काम कर रही थी, और एक एजुकेशन एम्पिरिकल रिसर्च का काम था। हाँ, तो वो हम जैसे 2-3 के ग्रुप थे, कुछ वो हमारे फॉरेनर्स थे, कुछ हम थे, जाते थे फीमेल माइग्रेंट वर्कर्स, उनसे घरों पे जाते थे, क्या कंडीशन है हाउसिंग की, कैसे रेंट है, पानी पीना, ये सारी चीजें लाइक यू नो, एंड देन वी ऑल टुगेदर co-authored a report, and that report was submitted to the UN special rapporteur on housing basically. Okay. And we requested them like come visit Delhi and Haryana and please investigate these. सर अभी चालू है प्रोग्राम? हाँ, like you can find it on JNU website as well as on William S. Boyd Law School. But it happens like odd even also, like you know, it happens like 1 year. मतलब ऑन एंड ऑफ मिल जाती है। हाँ। You need to keep an eye over there. हाँ, मिल जाएगा। अच्छा सर, एंसिलरी क्वेश्चन ओवर विद दिस कि अगर मान लीजिए मैं मेट्रो सिटी में नहीं रहता या मेरा लॉ स्कूल कहीं दूसरी जगह में है, तो ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे मेरे को एनवायरमेंटल लॉ का अगर एक्सपोजर लेना है, बीट सिविल सोसाइटी, बीट NGO, व्हाटएवर इट इज, तो उनका कोई नाम आप देख सकें? देखो, सबसे बढ़िया बात है अपनी कंट्री के अंदर कि भाई अपने पास NGT है, हाँ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो 2010 में खुला। करेक्ट। दैट इज लाइक यू नो बिगेस्ट प्लस पॉइंट कि अगर कोई रिसर्च राइटिंग में इंटरेस्ट भी नहीं हो, जो बोले मुझे तो लिटिगेशन में इंटरेस्ट है, मैं तो एनवायरमेंटल लिटिगेशन करना चाहता हूँ, तो द प्लेटफॉर्म NGT इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट विद। लॉ क्लर्कशिप होती है, आप इंटर्नशिप लॉ क्लर्कशिप 1-2 महीने के लिए जजेस के अंडर करो, यू विल कम अंडर देयर आई, उनके साथ काम करोगे, वो तो बाद में भी चांसेस रहेंगे मिलने का, एंड साथ में तुम्हारा वो हो जाएगा कि भाई एनवायरमेंटल लिटिगेशन होता क्या, किस टाइप का काम है, किस टाइप का वर्क रिक्वायरमेंट, स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। हाँ, सैलरीड है और वो लॉ क्लर्कशिप, तो वो ज्यादा फायदा है, ठीक है। फिर उसके बाद एनवायरमेंटल NGO देखो तुम, अपना MC मेहता फाउंडेशन, एनवायरमेंटल फाउंडेशन देहरादून में शायद आई गेस, वहाँ कर सकते हो तुम। उनकी वेबसाइट पे एनवायरमेंटल सपोर्ट ग्रुप, जहाँ मैंने भी काम किया 1-2 साल, तो वो बैंगलोर के अंदर है, बहुत अच्छा काम करते हैं वो। साउथ और ऊपर इवन इन नॉर्थ दे डू वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल जस्टिस वर्क। आप जाओ, लाइक जैसे
आप फॉल के अंदर अप्लाई करना चाहते हो या समर में करना चाहते हो, ठीक है, तो स्प्रिंग में जैसे आपका सेमेस्टर मई में खत्म हो जाता है, तो आप अप्रैल के अंदर इन ऑर्गेनाइजेशन को ईमेल लिख दो, अपना सीवी अटैच कर दो और एक 500 वर्ड का लेटर ऑफ इंटरेस्ट साथ में कि भाई क्यों आपको जाना है वहाँ पे, ये चीजें आप कर दो, तो उन ऑर्गेनाइजेशन के पास भी टाइम रहेगा कि 1-2 महीने में वो आपकी एप्लीकेशन देख लेंगे आराम से, और फिर बाय द टाइम आपका सेमेस्टर खत्म हुआ यू आर रेडी टू गो फॉर द इंटर्नशिप, तो बीच में कोई टाइम गैप भी नहीं रहा। और ये ऑर्गेनाइजेशन सारी डिटेल्स, ईमेल्स, ये सब चीजें इनकी वेबसाइट पे रहती है। तो मैंने एमसी में था, एनवायरमेंटल फाउंडेशन, एनवायरमेंट सपोर्ट ग्रुप हो गया, फिर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, वो दिल्ली के अंदर है, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी है, वो भी अच्छा है। एक नया खुला है अभी, कुबरनेन इनिशिएटिव्स खुला है, अच्छा, रन बाय टू फीमेल्स एंड वेरी नाइस एनवायरमेंटल वर्क एंड क्लाइमेट चेंज रिलेटेड वर्क दे आर डूइंग, जेंडर आल्सो। फिर ग्रीन पीस, WWF, ये ऑर्गेनाइजेशंस तो है ही। So these are quite competitive. विधि के अंदर मिलना इंटर्नशिप, though they have this incursion policy with them, थोड़ा difficult। हाँ, थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर वो है कि लाइक अब जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा देख कि 3rd ईयर के अंदर तुमने ESG में या MC मेहता में कर लिया, हाँ, फिर इजी 4th ईयर में तुमने वापस यहाँ अप्लाई किया, तो उन्हें पता रहेगा ना कि काम किया है इसने, पहले इंटरेस्टेड है, तो आपको अपना लाइक वो ABCD वैसे बना के चलना है। फिर देयर इज वन इन धर्मशाला आल्सो, हिमालयन एडवोकेसी सेंटर, वन ऑफ माय कलीग जूनियर फ्रॉम जिंदल, उसने अभी वहाँ स्टार्ट किया है, एंड वेरी नाइस, एंड अभी लाइक यू नो हैज अ प्लेस एंड एवरीथिंग, बुक्स, एंड ही डू like research on all the Himalayan areas and issues related to it. So people who are interested in that also, they can go there. लॉयर्स में आई नो दिस गाय ऋत्विक दत्ता, उसका ऑर्गेनाइजेशन है अपना लीगल इनिशिएटिव्स फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, दिल्ली में है वो भी, तो वहाँ पे भी पीपल, सर बहुत सारे नाम बढ़िया आपने लोग ढूंढ के आराम से निकालेंगे। नाउ सर बिफोर कमिंग टू योर एसओपी, कि आपने एलएलएम में एसओपी में क्या डाला, देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट, ओके, सो दैट स्टोरी आई नो, बट एक बार आप शेयर करिए कि आप एनवायरमेंटल लॉ में कैसे गए, मतलब इट वाज प्री प्लान्ड, क्या था? सो लाइक जिंदल 5 ईयर BA LLB ऑनर्स था मेरा, तो लाइक 3rd ईयर तक मेरा ऐसा था कि लाइक आई वांटेड टू बिकम लाइक फुल फ्लेजेड लाइक क्रिमिनल लॉयर, लाइक यू नो, और काफी अच्छा भी लगता था सब्जेक्ट मुझे, एंड लाइक क्रिमिनल जस्टिस एंड ऑल दिस, लाइक थोड़ा वो एनकरेजमेंट अंदर से भी आता था। तो देयर वाज दिस अपॉर्चुनिटी केम कि किंग्स कॉलेज में समर स्कूल्स होते हैं, तो वहाँ पे क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस का समर स्कूल प्रोग्राम था, तो मैंने अप्लाई भी किया, इवेंट पार्टिसिपेटेड, आई कंप्लीटेड सक्सेसफुली, आया मैं। फिर 4th ईयर के अंदर दिस अमेज़न थिंग केम अप, तो फिर जब मैं अमेज़न गया तो फिर उसके बाद तो लाइक सब कुछ ही लाइक बदल गया, लाइक यू नो वो 2 महीने विदाउट फोन, वॉलेट, विदाउट लाइक यू नो नेटवर्क, ह्यूमन नेटवर्क बेसिकली आउटसाइड, वो कुछ अलग एक्सपीरियंस, एंड दैट रियली लाइक यू नो टच इनसाइड। तो फिर आई केम बैक एंड देन आई डिसाइड कि यार ये करना है, तो बस लाइक यही करना है और फिर इसी को ही कंटिन्यू करना है, चाहे कुछ भी हो, वेदर अप्स और डाउन्स, आई एम नॉट गोना लीव दिस। तो फिर वो वाला सीन हो गया था, तो फिर ये था कि चलो ठीक है, एंड इसलिए लाइक जैसे 5वां साल था मेरा, उसी समय मैंने अपनी एप्लीकेशंस SOP और ये सब तैयार करना स्टार्ट कर दिया था। कुछ लोग ये भी होते हैं कि भाई लॉ पास आउट हो जाते हैं, देन 1-2 सालों काम करते हैं, ढूंढते कि भाई मेरा इंटरेस्ट है या नहीं है इस एरिया में, वो करते हैं, फिर भी चले जाते हैं। मैं बोलता हूँ वो भी सही है, बट जिसको लगता है कि भाई 5 साल के अंदर उन्होंने आ गया, उन्होंने ढूंढ लिया अपना, तो फिर वो चले जाओ, लाइक यू नो रुको मत, फिर वो बाद में भी करोगे तुम, अभी भी करो, तो फिर लाइक वो फायदा तो होएगा ही तुम्हें, नॉलेज है, लाइक अभी बाद में बात तो एक ही है। सर एक बात की, आपके जो आपने लुइस क्लार्क लॉ स्कूल से आपने एनवायरमेंटल लॉ करी यूएस में, सर आपको याद है कि आपके एसओपी में ऐसा क्या था व्हिच यू थिंक कि मेड स्टैंड आउट योर सीवी एंड एसओपी? देखो जनरली 3 थिंग्स आर देयर, कोई भी तुम यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हो, तो तुम्हारा जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट या पर्सनल लेटर जो भी होता है, 3 चीजें तुम ध्यान रखो। पहली चीज motivational enthusiasm and clear understanding of the subject, that why do you want to apply of this particular course, whether human rights में specialize करना चाहते हो, environment में करना चाहते हो, corporate में करना चाहते हो, क्या तुम्हें क्या motivate कर रहा है, क्या तुम्हारा enthusiasm है, ये strong होना चाहिए। हाँ, ये दिखाना पड़ेगा, clear understanding होनी चाहिए, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, your academic background, that should academic background and other experience, वो तुम्हें सपोर्ट करना चाहिए कि ये कोर्स जो तुम अप्लाई कर रहे हो, उस जो तुम्हारा एकेडमिक बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस है वो उसको सपोर्ट करना चाहिए, उस कोर्स को, स्पेसिफिकली स्पेशलाइजेशन को, एंड
कि भाई वो जो स्पेशलाइजेशन कर रहे हो तुम, वो तुम्हें फ्यूचर में कैसे हेल्प करेगी, नॉट ड्यूरिंग योर एलएलएम, निकलने के बाद। एलएलएम में तो अपन स्टूडेंट रहेंगे, आफ्टर एलएलएम विल बी अनएम्प्लॉयड। वो भी एसओपी मेंशन करना पड़ता है। हाँ, वो भी मेंशन करोगे तो यूनिवर्सिटी देखेगी ना कि क्या करना चाहता है, किस वे में जाना चाहता है। सर, आपने क्या लिखा था? हाँ, मैंने लिखा है एनवायरमेंटल करियर, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ करियर परस्यू करूंगा एज अ लॉयर, तो स्टिल गोइंग ऑन इन दैट डायरेक्शन। अच्छा। And third thing, evidence that you have the ability, experience, skills, motivation to successfully contribute to this LLM or master specialization and to complete it. So it could be anything. जैसे तुम्हारे हाई ग्रेड्स हो गए, ह्यूमन राइट सब्जेक्ट लिया, एनवायरमेंटल लिया तुमने लॉ, ठीक है, उसमें तुम्हारे हाई ग्रेड्स आए तो वो सब्जेक्ट तुम लाइक ऐसा पूरा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है तुम्हें, बिल्कुल लाइक आई रिसीव्ड दिस ग्रेड इन माय एनवायरमेंटल लॉ सब्जेक्ट एंड लाइक आगे कोई अवार्ड मिला है, कोई स्कॉलरशिप मिली है, कोई रिसर्च इंटर्नशिप मिली है, ठीक है। और मेन चीज ये जो भी एक्सपीरियंस होता है ना तुम्हारा, ये सारा एक्सपीरियंस तुम्हें वो तो सीवी में देख लेती है यूनिवर्सिटीज, तुम सीवी भी साथ में भेजते हो, सीवी भेजते हो, एसओपी भेजते हो, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस भेजते हो, तो सीवी में देख लेंगे कि भाई तुमने कहाँ इंटर्नशिप की है। वो चीजें सेम रिपीट करने का एसओपी में कोई फायदा नहीं है। तुम जहाँ पे काम किया है, तुमने वहां से क्या सीखा, जो भी सीखा वो क्या स्किल्स डेवलप की, और वो स्किल्स तुम्हें कैसे हेल्प कर रही है, वो स्किल्स एसओपी में आनी चाहिए, रादर देन कि हाँ भाई मैंने यहाँ काम किया, यहाँ काम किया, वो सेम वर्बेटिम या कॉपिंग। हाँ, तो फिर उनको क्या फायदा, वो तो सीवी पढ़ लेंगे, फिर क्यों पढ़ेंगे तुम्हारी एसओपी? समथिंग व्हिच लाइक यू नो जॉइन करके स्टेप बाय स्टेप करके तुम्हें ऊपर ले जाए, लाइक यू नो दैट शुड बी देयर इन योर एसओपी। तो जैसे जब मैं अपनी एसओपी लिख रहा था, आई वेंट ऑन टू ईच LLM वेबसाइट व्हिच आई शॉर्ट लिस्टेड। मैं उनकी वेबसाइट पे चेक किया, पूरा देखा कि भाई उनके कोर्स में क्या अलग है, कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी में क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, वो क्या देख रहे हैं, स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन क्या है। फिर उस हिसाब से मैंने अपना एसओपी मॉडरेट किया हर एप्लीकेशन के लिए। 60-40 वाला रेशियो रखो। एक पहले लाइक यू नो क्या होता है कि जनरली लाइक यू नो आस्क लाइक यू नो अपन से अपने आप से पूछो कि लाइक व्हाई डू आई एक्चुअली वांट टू गो देयर, क्यों जाना चाहता हूं मैं इस कोर्स के लिए और मुझे क्या मिलेगा, ठीक है, वो चीजें पूछो। और डिफिकल्ट भी रहता है कि लाइक यू नो बैठते ही स्टार्ट लाइक क्या लिखे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हाउ टू स्टार्ट। तो मैंने तो क्या किया, लाइक माय प्रोसेस वाज लिटिल वोकल। मैं कमरे में गया, आई लॉक द रूम एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माय सेल्फ। 1 घंटे 2 घंटे बात करो अपने से। तो अपने से जब बात करोगे देन यू विल नो कि हाँ लाइक क्या क्या आइडियाज है। देन फिर बैठो तुम, पेन पेपर लो सिंपल, और लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। जो भी तुम्हारा जैसे एनवायरमेंट लॉ है तो उससे रिलेटेड जो भी था तुम्हारा डिस्कशन अपने आप से हुआ, वो सब कुछ लिख डालो, ठीक है। अब वो बन गया तुम्हारा एक मेन, ठीक है। अब यूनिवर्सिटीज की जो वेबसाइट्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उनको तुमने जैसे मॉडरेट किया, शॉर्टलिस्ट किया, अब उनको देखो और उसके हिसाब से वो 60-40, तो 60% हमें हर एसओपी सेम रहेगी, 40% जो डालोगे वेबसाइट के हिसाब से चेंज होती रहेगी। हाँ, प्रोफेसर से, सेंटर से, तो उस हिसाब से तुम मॉडरेट करो, तो तुम्हारा एप्लीकेशन भी एसओपी भी जेन्युइन लगेगा, और अगला जो पढ़ेगा उसे भी लगेगा कि ही वेंट थ्रू माय प्रोग्राम, पर्सनलाइज्ड टच आ जाएगा उसमें, पर्सनल टच आ जाएगा। एकदम सही, हाँ बिल्कुल करेक्ट सर, ठीक है। एंड देन सर्कुलेट, लाइक जब तुम्हारा एसओपी तैयार हो गया है तो तुम्हारे 5 साल के अंदर तुम्हारे कलीग्स होंगे, क्लासमेट्स होंगे, कुछ प्रोफेसर्स ऐसे होंगे जिनके साथ तुम्हारा वेरी गुड रिलेशन है। तो तुम्हें जो लगता है तुम्हारे जो क्लासमेट्स बहुत अच्छे हैं, 1 या 2 जने, उनको भेज दो। तुम जो प्रोफेसर है उनको भेजो। तो जब दूसरा आई देखेगा तुम्हारा एसओपी तो कुछ चेंजेस उसमें आएंगे। 2 चेंजेस आए अपने लिए फायदा है, जितने क्रिटिक्स आए अपने लिए, जितने कमेंट्स आए अपने लिए अपना ही बेटर होएगा। ऐसे मत देखो कि वो अपने लाइक यू नो कमेंट कर रहा है या क्रिटिक कर रहा है, ऐसे देखो कि अपन और बेटर हो रहे हैं उस चीज से, राइट। तो वो चीज करो। तो देन इन द एंड व्हेन यू विल सबमिट, 4-5 लोगों ने देख लिया, अपन ने ध्यान से बनाया है, तो फिर वो एसओपी कहीं रुकेगा ही नहीं। और लाइक यू नो मेन बात सबसे फाइनली जो मेरा सजेशन है एसओपी रिगार्डिंग, ये कि भाई डोंट फेक इट, बी एज मच एज यू पॉसिबल। सर आधे लिखते हैं घूमने जाना है केवल इसलिए नहीं, लाइक यू नो वो यानी जो अपन अपनी एप्लीकेशन यूनिक बनाएगा, वो इम्परफेक्शन बनाएगा, परफेक्शन नहीं बनाएगा। सबके अपने इम्परफेक्शंस है, वो अपन को यूनिक बना दें, तो उनसे स्टिक करो और आगे बढ़ो। सर अभी आपके एलएलएम पे तो आएंगे, उससे पहले सर एक चीज पूछनी थी। जैसे मैंने अभी अप्लाई किया था यूके के अंदर, सो आई गॉट ऑफर लेटर फ्रॉम 8 यूनिवर्सिटीज। हालांकि मैं जा नहीं रहा, वो तो अलग चीज है।
बट इनिशियली जब मैं फर्स्ट ईयर में तैयारी कर रहा था एलएलएम की, हाँ. सो आई वाज टारगेटिंग कैम्ब्रिज, तो मैंने मेरे दोस्तों से पूछना शुरू किया. ठीक है. सो देयर वाज दिस 2-3 फ्रेंड्स ऑफ माइन, एक एनयूजेएस में था, एक नालसार वगैरह में थे. सो वो हाँ. बोले कि देख 4 से 5 चीजें ना तेरे सीवी में होनी चाहिए. ठीक है. एक तो पब्लिकेशन होनी चाहिए, ठीक है. कहीं भी करवा. ठीक है. एक तेरी सोसाइटी की कोई पोजीशन होनी ठीक चाहिए, है. एक तेरी ना रिसर्च इंटर्नशिप्स होनी चाहिए, हाँ. और ये चीज़ होनी चाहिए. हाँ. तो सर आपके हिसाब से लाइक आप तो अभी यूरोप के अंदर हैं, उससे पहले यू वेंट टू द स्टेट्स, ऐसे कौन से बेयर मिनिमम फैक्टर्स होने चाहिए आपके सीवी में कि भाई ये चीजें तो रखना ही रखना, उसके बाद अप्लाई करना. तो व्हाट आर दोस फैक्टर्स आपके हिसाब से? सी लॉ अपना हो जाता है यहाँ पे, चाहे 5 साल वाला कर रहे हैं चाहे 3 साल वाला कर रहे हैं, ठीक है, वो एक बेसिक डिग्री है टू बी अ लॉयर, टू बी एडवोकेट, जो भी. फिर जब मास्टर्स, एलएलएम, पीएचडीज, ये सब डिग्रीज आती है, तो ये डिग्री है कि आप एडवांस नॉलेज के लिए जा रहे हो. किसी एक एरिया है, वो आपने पढ़ा है, एनवायरमेंटल लॉ आपने पढ़ा है लॉ स्कूल में, बट वो एक सेमेस्टर में आपने एक सब्जेक्ट मिला है, ठीक है, उसके बाद चाहे इलेक्टिव्स ले लिए होंगे आपने 1-2, ठीक है, बट अब एलएलएम की जब बात आई तो आप उस एक सब्जेक्ट को एडवांस 1 ईयर तक पढ़ोगे और मल्टीपल लाइक पार्ट्स, एनवायरमेंटल, एयर, वाटर, नेचुरल रिसोर्सेज, इंडिजिनस राइट्स, व्हाटएवर, लाइक फॉरेस्ट राइट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे, तो यू गो थ्रू ऑल ऑफ देम. तो एडवांस सब्जेक्ट्स रिक्वायर्स रिसर्च आल्सो. ट्रू. राइट. तो उसके लिए एक सबसे चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई पब्लिकेशंस, ठीक है, चाहे पीयर रिव्यूड जर्नल्स हो, चाहे ओपिनियन पीसेज हो, ब्लॉग पीसेज हो, लिखो. अपने यहाँ राजस्थान के जो न्यूज़पेपर्स आते हैं, लोकल न्यूज़पेपर्स आते हैं, उसमें लिखो, चाहे हिंदी में लिखो, बट लिखो. लाइक कितना टाइम लगता है एक ओपिनियन पीस लिखना होता है. फॉर एग्जांपल कोई पॉलिसी निकाली गवर्नमेंट ने अपने, ठीक है, तो आपको या अपनी गवर्नमेंट वहाँ गई, कॉप अटेंड करने के लिए गई और वहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई इंडिया की ये कमिटमेंट है 2050 तक, 2070 तक, तो उस पर अपना एक कमेंट लिख दो कि वेदर लाइक कि क्या लगता है कि वेदर वी विल बी एबल टू अचीव इट और नॉट, और लाइक ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा करना पड़ेगा. तो इट हेल्प्स यू, अच्छा राइटर बनाने में आपको हेल्प करता है, पहली बात. दूसरी बात कि जब आप अपनी एप्लीकेशन डालोगे भी यूनिवर्सिटी में, तो वो देखेंगे कि भाई ठीक है, लाइक ये पहले से लिख रहा है, इसको पता है, लाइक ही इज इंटरेस्टेड इन राइटिंग, ही इंटरेस्टेड इन रिसर्च, और ये वो. तो दीज थिंग्स, लाइक इफ यू गो लिटिल आउटसाइड, मतलब पब्लिकेशन इज अ मस्ट. हाँ, पब्लिकेशन इज अ मस्ट. हाँ, वो तो है. और ठीक है, उसके बाद रिसर्च इंटर्नशिप्स, एनजीओ इंटर्नशिप्स इन कोर्ट्स, लाइक उन एरियाज के अंदर, उन स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो एलएलएम से रिलेटेड है उस एरिया से, वो बहुत ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि वहां से तुम्हारा जो रिकमेंडेशंस भी भेजोगे तुम एलओआरस, जो एक की पॉइंट होता है एलएलएम एप्लीकेशंस का, तो उसमें तुम या फिर अपने प्रोफेसर्स को बोलोगे कि जिनके साथ सब्जेक्ट्स लिए तुमने, या फिर तुम बोलोगे कि जिनके साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम किया. तब जैसे देख, फॉर एग्जांपल तूने 3rd ईयर में एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, ठीक है, 4th में भी कर लिया तूने, 2 बार कर लिया, 5th में व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर्स, अब वो क्या देखते हैं, अब वो ये नहीं देखते कि लाइक वेदर यू आर गेटिंग अ रिकमेंडेशन फ्रॉम अ सुप्रीम कोर्ट जज, अब वो सुप्रीम कोर्ट जज का रिकमेंडेशन लेटर तो तू लेके आ गया, वो ये देखेंगे कि भाई वो जज तुझे कितने टाइम से जानता है, कितने टाइम तूने उसके साथ काम किया, किस टाइप का काम किया है, उसने किस चीज़ों पे तुझे इवेल्युएट किया है. तो एक रिसर्च इंटर्नशिप की तूने एनजीओ में, वहाँ पे तूने ड्राफ्ट की, रिपोर्ट्स ड्राफ्ट की, ये सब कुछ की, और 2 बार की तूने, वो 2 साल हो गए तेरे को जानते हुए, 4th ईयर और 5th ईयर. तो वो जो एनजीओ का डायरेक्टर है, वो जब लेटर लिखेगा तो वो लिखेगा कि दिस स्टूडेंट वाज अंडर मी फॉर 2 years, उसकी इसने ये चीजें ड्राफ्ट की है, मैं उसकी रिसर्च स्किल पे कमेंट कर सकता हूँ. अब वो चाहे डायरेक्टर है एनजीओ का, वो वैल्यूएबल ज्यादा होगा, ज्यादा होगी कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट जज जिसके अंदर तुमने 1 महीना इंटर्नशिप की, मे बी 2nd ईयर या 3rd ईयर में, उसमें तुम्हें लॉ के बारे में कुछ ज्यादा पता ही नहीं था. तो फिर वो चीजें होती है. तो ऐसे मत देखो कि लाइक दूसरे ढंग से देखो. करेक्ट. तो वो एलओआरस में भी फायदा करते हैं आगे तुम्हें. करेक्ट एब्सोल्युटली सर. यही चीज है ना, अभी आई हैड दिस पॉडकास्ट करण के साथ, सो ही आल्सो टोल्ड कि तुम्हारे एकेडमिक रेफरेंसेस होते हैं ना, दैट मैटर्स अ लॉट बिकॉज़ द टीचर नोज यू. सो ही टोल्ड मी कि वो उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है. डेफिनेटली. नाउ सर, कमिंग टू द एलएलएम फ्रॉम यूएसए, सर सबसे पहली चीज तो कि कितनी कॉस्ट पड़ती है अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली. आज मान लीजिए कि मैं आपके कॉलेज से एलएलएम करता हूँ, मेरे को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो मेरा आईएनआर में कितना खर्चा बैठ जाएगा टोटल? Depends from city to city and university to university in US. ठीक है. Minimum 20, it can go up to 60 lakhs. ठीक है. मिनिमम 20 लाख रुपए लगेगा इंक्लूडिंग द ट्यूशन फी एंड योर लिविंग एक्सपेंसेस टोटल. ये वाला की ये वाला. ठीक है. नाउ सर, वन थिंग, आपने यूएस चूज करा ओवर यूके बिकॉज इट्स अ टेंडेंसी कि लोग यूके जाते हैं, 11 महीने का साइकिल खत्म होता है, वापस यहाँ आ जाते हैं, और यूके के अंदर कॉस्ट कम पड़ती है. सो व्हाई यू चूज यूएस ओवर यूके? देखो, आज की तारीख में 2023
21st modern like you know we are living in 21st century. तो उस टाइम पे हर कंट्री जो वेदर यू पिक यूएस, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इन सब कंट्रीज के अंदर अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, अच्छे लॉ स्कूल्स हैं, और तुम्हें ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट, कॉर्पोरेट, आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इन सब एरियाज के अंदर तुम्हें हर कंट्री के अंदर अच्छी यूनिवर्सिटीज और अच्छे प्रोग्राम मिल जाएंगे. वो बात पुराने टाइम थी कि भाई यही जाना पड़ेगा, ये यहीं पे है, तो वो चीज तो हट गई. ठीक है. अब दूसरी बात, मैंने एनवायरनमेंट लॉ था, तो फिर लुइस एंड क्लार्क ऐसा कॉलेज था कि वो अभी फास्ट 5-10 साल से तो टॉप 5 के अंदर है, फ्लैगशिप कॉलेज है, लाइक यू नो वहाँ पे आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग मिलती है. काफी स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल लॉ प्रोग्राम है. जो फैकल्टी पढ़ा रही है वो 25-30 साल से वहीं पे पढ़ा रही है वो सब्जेक्ट्स, तो दे आर लाइक यू नो वेरी मास्टर्ड. और आप तो इसलिए लाइक वो था. तो जब मैंने अप्लाई किया यहाँ पे, तो आई अप्लाइड टू 4 यूनिवर्सिटीज. लुइस एंड क्लार्क किया मैंने, फिर पेस यूनिवर्सिटी किया, वर्मोंट किया, एंड यूसी बर्कली किया. चारों के अच्छे थे एनवायरमेंटल लॉ प्रोग्राम्स. लुइस एंड क्लार्क ने सबसे ज्यादा, आई गॉट इनटू ऑल 4 ऑफ देम. सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप दी मुझे, एनवायरमेंटल एम्बेसडर अवार्ड आई गॉट, व्हिच वाज 70% ट्यूशन ऑफ. So how you got that? Just with the letter which I wrote with the SOP, nothing except like you know, जब आप यूनिवर्सिटीज, कई यूनिवर्सिटीज में होगा कि स्कॉलरशिप लेटर एक्स्ट्रा डालना पड़ता है एप्लीकेशन में. कई यूनिवर्सिटीज बोलती है कि आपके SOP के बेस पे ही स्कॉलरशिप देंगे. तो फिर वो यानी आप पहले यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट को थॉरोली करो, ऊपर से नीचे जाओ, 1 to Z, लाइक यू नो वो चीज करो, अपना लिस्ट बनाओ वैसे. ठीक है, वो चीज हो गया. तो फिर वो स्कॉलरशिप मिला, एंड देन आई डिसाइडेड कि ठीक है चलो ट्यूशन अब ऑफ हो गया, तो फिर बस लिविंग का रहेगा. तो फिर और आई हैड लाइक यू नो वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस बेसिकली. लाइक फैकल्टी ग्रेट थी, अप्रोचेबल थी. और इसके बाद जब कोर्स खत्म हुआ तो एक कोर्स मेरे को एक्वाडोर में लेने का मिला, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ इन एक्वाडोर. वहाँ पे मैं एंडीज की जो इंडिजिनस कम्युनिटीज थी वो गोल्ड माइनिंग से इम्पैक्टेड थी और वाटर कंटेमिनेशन हो रहा था. तो वहाँ गया मैं, 1 महीने वहाँ रिसर्च किया. फिर उसके बाद 2014 में मैं गया था ब्राजील. तो दीज ब्राजील पीपल आई कॉन्टेक्टेड इन 2016 जब मेरा मास्टर्स हो रहा था. तो मैंने बोला कि मैं एक्वाडोर आ रहा हूँ, तुम्हारा ये समर स्कूल प्रोग्राम होगा, तो इस बार मैं आना चाहता हूँ वापस. तो बोले कि यू कम एज अ कोऑर्डिनेटर ऑफ द प्रोग्राम दिस टाइम, डोंट कम एज अ स्टूडेंट. और दे टेक केयर ऑफ मोस्ट ऑफ माय थिंग्स. फिर एक्वाडोर से आई वेंट टू ब्राजील, वहां रहा 2 महीने, आई कोऑर्डिनेटेड द प्रोग्राम एंड स्टूडेंट्स आए थे ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो दैट वाज रियली लाइक यू नो पुश मी अगेन. तो फिर ये दोनों चीजें ऐड हो गई. तो ओवरऑल लाइक यू नो बेसिकली ये है कि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज विल हैव स्कॉलरशिप. ठीक है, स्कॉलरशिप मिल जाएगी. तुमने पहले अच्छी रिसर्च इंटर्नशिप्स की है, पब्लिकेशंस की है, तुम यू आर रियली सीरियस अबाउट योर फील्ड, तो हर यूनिवर्सिटीज के अंदर आजकल इंटरनल स्कॉलरशिप मिल जाती है. ठीक है. और फिर उसके बाद अगर 30% मिल गई, 50% मिल गई, 80%, इवन 100% दे देती है आजकल यूनिवर्सिटीज. तो एक चलो ट्यूशन तुम्हारा हो गया फिक्स, अब बचा तुम्हारा लिविंग एक्सपेंसेस, राइट. तो लिविंग एक्सपेंसेस के लिए कई सारी कॉमन स्कॉलरशिप्स है, स्पेसिफिकली इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए भी और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए. नहीं, सो हाँ, कम्युनिटी बेस्ड एंड आल्सो कॉमन स्कॉलरशिप्स बाय इंडियन फिलैंथ्रोपिस्ट लाइक रतन टाटा हो गए. सो फॉर एग्जांपल JN टाटा एंडोमेंट, इनलेक्स फाउंडेशन स्कॉलरशिप, KC महिंद्रा स्कॉलरशिप, आगा खान फाउंडेशन स्कॉलरशिप, नरोत्तम सेखसरिया स्कॉलरशिप, द लेडी मेहरबाई डी टाटा एजुकेशनल ट्रस्ट, इरास्मस मंडस स्कॉलरशिप. ये तो हो गए अपने इंडियंस के लिए. आप डायरेक्ट अप्लाई करो. आप अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो और आपका एडमिशन हो गया है, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस आपको फंड्स देगी जो आप यूज कर सकते हो लिविंग के लिए भी. अब यूके स्पेसिफिक जा रहे हो तो रोड्स हो गई, कॉमनवेल्थ हो गई, शेवनिंग हो गई, फेलिक्स हो गई. यूएस में फुलब्राइट नेहरू मास्टर स्कॉलरशिप हो गई. बट सर जो आप बताया बहुत कॉम्पिटिटिव है. इनलैक्स जो बताया ना सर, उसके तो क्राइटेरिया शायद मैंने देख रहा था 70% चाहिए इसके अंदर एकेडमिक्स से हमें. फिर उसमें वो कहते हैं कि लॉ के बच्चे का हमें आर्ट्स के हम डालेंगे. मतलब बहुत सारे यू नीड टू डू योर रिसर्च. हाँ नहीं, वो तो देखो मनी का जो लाइक यू नो हो सकता है, बट हार्ड वर्क का कोई वो लूप ऑल्टरनेटिव है. द ओनली वे इज थ्रू, लाइक यू नो वे आउट इज थ्रू. सो वो तो चीज करना पड़ेगा कहीं पे भी चले. सर आपने टीचर्स का बोला कि वहाँ पे फैकल्टी 30 साल से पढ़ा रहे हैं. सो व्हेन यू वेंट टू द यूएस, आपको टीचिंग में क्या डिफरेंस लगा? जैसे अपने यहाँ पे कहते हैं कि रॉट लर्निंग होती है कि सुबह पढ़ो, शाम को वही जस्ट वॉमिट आउट इन योर पेपर. और वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा था? वहाँ पे क्या चीजें अलग है एज कम्पेयर टू इंडिया? देखो, like one thing which kept me little ahead और helped me was that मैं जिंदल में पढ़ा 5 साल, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल for 5 years. I already had teachers from US and UK. Correct. सब्जेक्ट्स दिए उन्होंने, पढ़ाया हमें, उनकी स्टाइल्स पता चली मुझे. मेन चीज क्या होता है,
डोंट मग अप एंड मेमोराइज, भूल जाओ, ये चीज सबसे खराब है। मगिंग अप एंड मेमोराइजिंग इज योर बिगेस्ट एनिमी एज अ लॉ स्टूडेंट। वो चीज हमें सिखाई जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के टाइम पे। हमारे ज्यादातर जो एग्जाम्स हुए थे वहां पे वी वर अलाउड टू टेक केस लॉज, वी वर अलाउड टू टेक आवर नोट्स, वी वर अलाउड टू टेक बेयर एक्ट्स, और फिर वो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते थे वो सारे एप्लीकेशन बेस्ड प्रैक्टिकल नॉलेज हाइपोथेटिकल होते थे। सेम वहां भी यूएस में भी वैसा ही था, यूके में भी जनरली वैसा ही होता है। तो ये सारी चीजें लाइक द सिस्टम वाजंट एलियन टू मी, तो उस चीज में मुझे हेल्प हुआ थोड़ा सा। फिर मैं ये नहीं बोलता कि सारी चीजें परफेक्ट होती है, आई ऑल्सो फेल्ट अनसेटल्ड। आप इतने दूर जा रहे हो, फैमिली से दूर जा रहे हो, नया कल्चर है, कल्चर शिफ्ट है, तो वो सारी चीजें रहती है। तो जो अनसेटलिंग फील करते हो वो चीज बहुत अच्छी है, उस चीज को ऐसे नेगेटिवली कभी मत देखो, उसको एम्ब्रेस करना सीखो। लाइक यू नो इफ यू आर फीलिंग अनसेटल्ड देन लाइक यू नो दैट इज वेरी गुड थिंग। तो फिर वो करो एंड लाइक जस्ट लाइक बेसिकली गिव योर बेस्ट, और जैसे चीजें आती है टेक इट लाइक यू नो एज इट कम्स। तो मेजर डिफरेंस यही था कि वहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग या फिर नॉट लर्निंग का कल्चर नहीं है। हाँ, दे गिव यू मोर रिसर्च ओरिएंटेड, रिसर्च स्किल्स एंड क्रिएटिव आर्गुमेंट्स, व्हाट दे आर लुकिंग कि भाई ए के आर्गुमेंट्स क्या है एंड वाई वो ऐसे सोचता है, बी के क्या है, सी के क्या है। तो वो जो अपनी सोचने की स्टाइल है वो देखना चाहते हैं वो, और कुछ नहीं देखना चाहते हैं। और हमेशा याद रखो कि भाई पहली रिमेंबर व्हाई डिड यू अप्लाई टू दैट मास्टर्स कोर्स एट द फर्स्ट प्लेस। कीप इट एट बैक ऑफ योर माइंड ऑलवेज। सर सेकंड लास्ट क्वेश्चन यूएस से रिगार्डिंग कि सपोज अपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलता है कि भाई मैंने इतनी फीस दी, मेरे को यहाँ से इतने का प्लेसमेंट मिलेगा, मैं रिकवर कर दूंगा। सो वहाँ पे इफ आई सी कॉस्ट टू रिवॉर्ड रेशियो कि सपोज मेरे को स्कॉलरशिप नहीं मिली, आई हैव इन्वेस्टेड 30 लाख रुपीस ओवर देयर, सो उसके बाद प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या रहते हैं इन जनरल? अब देखो जैसे तुमने 1 साल का मास्टर्स कर लिया, वहाँ पे यू हैव वन एकेडमिक ईयर, ठीक है, तो यू टुक पार्टिसिपेशन इन सम ऑफ द बेसिक कोर्सेज आल्सो, जो उनके वहाँ के नॉर्मल लीगल कोर्सेज है। जैसे अपने एनवायरमेंटल लॉ, तो वहाँ पे भी एनवायरमेंटल लॉ लिया तुमने, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ले लिया, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ले लिया, तो कुछ सब्जेक्ट्स तुमने ऐसे ही पढ़ लिया एलएलएम में। तो जो बाहर के एग्जाम्स होते हैं वहाँ के लाइक एक तो तुम देखो कि भाई तुम्हें करना क्या आगे, वेदर यू वांट टू गेट इनटू रिसर्च फील्ड और लिटिगेशन में वहाँ पे प्रैक्टिसिंग लॉयर बनना है, चलो प्रैक्टिसिंग लॉयर ले लिया फॉर एग्जांपल कि परस्यू करना है प्रैक्टिसिंग लॉयर, तो तुमने 1 साल का एग्जाम वो कर लिया एलएलएम। फिर उसके बाद 2 या 3 सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे होते हैं जो तुम्हें इलेक्टिव्स करने पड़ते हैं फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ द बार एग्जाम। तो वो तुमने एग्जाम दे दिए, फिर तुमने बार एग्जाम की 2-3 महीने अच्छी प्रिपरेशन की, तुमने क्लियर कर दिया बार एग्जाम। ठीक है, टफ होता है, मेहनत करनी पड़ती है, बट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि लाइक यू नो बाहर वालों का नहीं होता। आई हैव मेनी कलीग्स, उन्होंने गए वो 1 साल में 3 महीने उन्होंने दिन रात मेहनत की और उनका हो गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो आपके पैकेजेस स्टार्ट होते हैं तो वो लाइक वो 40,000 से 80,000 यूएस डॉलर्स पर एनएम के हिसाब से होते हैं। तो फिर वो आपने जो दिया पुराना निकल जाता है। हाँ, और 4-5 साल के बाद तुम 100,000 लाइन को क्रॉस कर दोगे। मतलब बार एग्जाम निकालने के बाद बेर मिनिमम मिल जाता है। हाँ, मिल जाता है। ऑल्दो मेरा एनवायरमेंट लॉ का था, मेरे को प्रैक्टिस नहीं करना था, तो मेरे को अनपेड पोजीशन मिली थी वहाँ पे, एक एनवायरमेंटल पॉलिसी थिंक टैंक था वॉशिंगटन डीसी पे, तो वो मैंने किया नहीं, बट आई रिटर्न, बट देयर आर अपॉर्चुनिटीज। और रिसर्च और उसके अंदर भी तुम थिंक टैंक में भी अगर पोजीशंस लेते हो और पेड पोजीशन मिल जाती है तो वो भी लाइक समझो 20,000 to 40,000 यूएसडी पर एनएम के बीच का होगा, तो तुम्हारा स्टार्टिंग दिनों में 2-3 साल तो निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि तुम्हें घर से लेना नहीं पड़ेगा, घर से नहीं लेना पड़ेगा, आराम से निकल जाएगा। सर लास्ट क्वेश्चन इज इसके रिगार्डिंग की, सर आपसे मिलने से पहले या बात करने से पहले मेरे को दिमाग में था कि एनवायरमेंटल लॉ या पब्लिक पॉलिसी रिसेंट तक ये लोग काम करते हैं, काम रहता है कि ठीक है रिसर्च वर्क करेंगे, सिविल सोसाइटी थिंक का काम करेंगे, और एट बेस्ट होगा तो लोकल स्टैंड आई का वो लेके टॉपिक रिसर्च पेपर लिख देंगे कि भाई यूएस की वजह से यहाँ दिक्कत हो रही है। बट दीज डेज इज अ ट्रेंड कि जैसे अभी रिसेंटली क्या हुआ मेरे को पता पड़ा कि जब पब्लिक पॉलिसी कोर्स करके आते हैं तो बिग 4 जो हो गई अपनी केपीएमजी पीडब्ल्यूसी जो भी हो गई, दे हायर यू कि एमएससी इन पब्लिक पॉलिसी जो एलएलबी की बात कर रहे हैं उनको पोजीशन मिलती है। तो सर एनवायरमेंटल लॉ में कुछ मिथ्स या कुछ ऐसी फील्ड या ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो इन जनरल पब्लिक को पता नहीं हो रिसर्च के अलावा? जनरली लाइक एक तो मैंने तुम्हें बताया कि एनवायरमेंटल वो एनजीटी अपना लिटिगेशन वाला का हो गया, ठीक है। एक ये हो गया कि एज अ रिसर्चर यू कैन जॉइन, एक लीगल डिविजन्स में तुम एनजीओ में ज्वाइन कर सकते हो, लीगल रिसर्च पोजीशन, या फिर लीगल एसोसिएट बन सकते हो तुम एनजीओ के अंदर। वहाँ पे दैट एसोसिएट, लाइक जब मैं बेंगलोर में था फॉर एग्जांपल, तो मेरा काम फील्ड में भी था। अच्छा, मैं फील्ड जाता था, लाइक वेस्ट मैनेजमेंट केस था हाई कोर्ट में चल रहा था बेंगलोर के अंदर, ठीक है, तो उसके लिए डेटा कलेक्शन करना था। तो आई विजिटेड ऑल द 7 to 8 लैंडफिल्स इन पर्सन, वहाँ पे इंटरव्यू किया लोगों के जो बाहर रहते हैं आसपास, उन लोगों के इंटरव्यू किया, आई डॉक्यूमेंटेड देयर ह्यूमन राइट वायलेशन, क्या इश्यूज है, वो चीज़ें की। फिर वापस आके वो आर्ग्यूमेंट्स अपने केस के जो रिप्लाईज हैं उनके अंदर ऐड करो, वो दैट ऑल्सो यू आर ड्राफ्टिंग, तो वो दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती है। तो आपको ग्राउंड वर्क भी मिल रहा है
वो भी नॉलेज आपका गेन हो रहा है इधर एज अ लॉयर, वो जनरली नहीं मिलता लीगल एक्यूमेन भी आपके हेल्प और साथ में उसमें भी हो रहा है, तो वो हो गया, एनजीओस का काम हो गया। फिर बाहर और इन यूनिवर्सिटीज आल्सो प्रोफेसर्स के अंडर तुम इंटर्नशिप्स ले सकते हो। हाँ, पॉलिसी थिंक टैंक्स हो गए, पॉलिसीज, यूएन, यूनेस्को, ये वाली ऑर्गेनाइजेशन, यूएनईपी, इनके अंदर तुम इंटर्नशिप्स ले सकते हो और इवन जॉब्स ले सकते हो आगे जाके। ओके ओके ओके। तो ये वाला सब कुछ एंड मिथ्स बेसिकली लाइक देखो यार, एनवायरनमेंट हो गया, ह्यूमन राइट हो गया, इन चीज़ों में तुम एकदम से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैंने मास्टर्स कर ली और फिर उसके बाद मेरे को लाइक अच्छा खासा पैकेज मिलेगा। लाइक यू नो, लाइफ इज हार्ड, काम करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। और क्या वे, लाइक यू नो, लाइफ इजी होगी तो फिर कोई मजा ही नहीं है, ठीक है। तो जब मैं आया एलएलएम करके 2016 में इंडिया में, तो मैं ईएसजी से स्टार्ट किया। अच्छा। 30-40 हज़ार रुपए थे, मैं एलएलएम किया, मैं ब्राजील यहाँ सब गया, यूके गया, सब जगह गया और फिर ये मिल रहा है। बट मेरे को पता था, मैं नहीं लाइक जब मैंने अप्लाई किया था एलएलएम के लिए, तभी मुझे पता था कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि एनजीओ मुझे टियर 1 लॉ फर्म की सैलरी दे, राइट। तो मैंने किया 1 साल, बहुत अच्छा काम मिला मेरे को। एनवायरमेंटल जस्टिस के मैनी इशूज लाइक लेक कंजर्वेशन, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रासलैंड डिपेंडेंट कम्युनिटीज है बेंगलोर में, दे आर इम्पैक्टेड बाय साइंस सिटी प्रोजेक्ट, न्यूक्लियर एनरिचमेंट एंड ड्रोन टेस्टिंग सेंटर्स एंड ऑल ऑफ। तो वहां पे आई वेंट एंड बहुत लाइक यू नो, इट गेव मी अ बिगर प्लेटफॉर्म। कहीं और भी ज्यादा इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाता मेरे को, तो वो दैट गेव मी अ लिटिल पुश। फिर उसके बाद यहाँ आया मैं, फिर यहाँ आने के बाद आई ऑल्सो वर्क हियर विद राजस्थान जयपुर AAG मेजर आरपी सिंह। तो उनके पास डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट थे। अच्छा। तो मैंने सर को बोला कि सर मैं बस इन डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम करूंगा, तो मेरा फील्ड भी था। और मुझे गवर्नमेंट की साइड से काम करने को मिल गया। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो भी फाइल करते थे तो वो वहां आते थे, तो आई वर्कड ऑन लाइक टाइगर रिजर्व्स केस और ये सारे केसेस पे काम करने को मिला। फिर उसके बाद जिंदल में मैंने 1 साल एनवायरमेंटल लॉ पढ़ाया, जाने से पहले, उपसला जाने से पहले। तो लाइक जहाँ पे भी आया सब कुछ मैंने एनवायरमेंट रिलेटेड ये चीज रखी कि मैं इस फील्ड को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो, वेदर अप और डाउन कैसा भी हो, बट आई विल ट्राई टू लाइक फाइंड। और मिला कुछ ना कुछ हर जगह मिला, तो हाथ पैर मारते तो मिला। सर एलएम वहां से यूएस आने के बाद फिर आपने यहाँ पे काम करा बोर्ड्स में, एंड यू वर फॉर्चुनेट इनफ कि आपको मिनिस्ट्री एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के साथ मतलब जो भी उनके रिगार्डिंग केसेस थे एनसीबी में काम करने मिलते रहे। और 5 साल था मैं यहाँ पे, 2016 यहाँ से 5 साल थे। फिर आप जिंदल चले गए एसोसिएट प्रोफेसर, वहाँ पे 1 साल रहा मैं, और फिर उसके बाद उपसला चला। हाँ, अब सर ये उपसला की कहानी कहाँ से शुरू हुई कि यूएस से फिर यूरोप, मतलब सो पीएचडीज का जब बात आता है ना, तो पीएचडी एलएलएम की तरह नहीं देखी जाती है। अच्छा। इट इज नॉट अबाउट कंट्री, इट इज नॉट अबाउट यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ये पीएचडी में ये चीजें नहीं देखते। पीएचडी में देखते हो आप किस रिसर्च, आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस क्वेश्चन को रिसर्च करना चाहते हो। एनवायरमेंटल लॉ बोलने को ठीक है वर्ड है एक, बट बहुत वास्ट फील्ड है। एयर, वाटर, लैंड, फॉरेस्ट, लाइक सो मैनी थिंग्स, क्लाइमेट चेंज, एवरीथिंग। तो आप उसमें भी एक छोटा सा एरिया पकड़ोगे, उस चीज पे काम करोगे, राइट। तो मेरा इंटरेस्ट था एनवायरमेंटल जस्टिस हो गया, एनर्जी रिलेटेड इश्यूज हो गए ये। तो आई वाज लुकिंग, फैकल्टीज ढूंढ रहा था मैं कि कौन किस यूनिवर्सिटीज में ये फैकल्टीज इन क्वेश्चन पे काम करती है। अच्छा, आपने फैकल्टी वाइज चूज करा, प्रोफेसर ढूंढ करा। तो जो प्रोफेसर ऑलरेडी उन चीजों में रिसर्च कर चुका है पहले, वो अगर आपका सुपरवाइजर बनेगा तो आपकी जर्नी कितनी अच्छी होगी, राइट। तो कभी यूनिवर्सिटी को मत ढूंढो, आप ढूंढो कि आपकी रिसर्च कौन कर रहा है। तो वैसे ये प्रोजेक्ट आया उपसला यूनिवर्सिटी का, वो सस्टेनेबल एनर्जी यूज और हेरिटेज प्रिजर्वेशन पे ढूंढ रहे थे रिसर्चर। तो फिर वो मुझे लगा इट वाज एप्ट फॉर मी, और दे वर लुकिंग अ पर्सन हु वाज प्रैक्टिसिंग एनवायरमेंटल लॉ, रिसर्च और लिटिगेशन वर्क फ्रॉम लाइक पास्ट फ्यू इयर्स। तो आई थॉट माय एप्लीकेशन उस वे में भी थोड़ा बैठता है, फिट करता है। तो फिर मैंने अप्लाई किया वहाँ पे, एंड एवरीथिंग वर्कड आउट। And I got the position, and it's a salaried position. हाँ, so that was what I was कि आप it's a salaried position, they are paying you something. So हर जगह होता है, चाहे यूएस से यूके से करोगे तो 3 साल में हो जाएगा तुम्हारा पीएचडी। यूरोप से करते हो तो जनरली 4 to 5 years में होता है, क्योंकि तुम यू टीच ऑल्सो, और तुम मास्टर स्टूडेंट्स को थीसिस सुपरवाइज भी करते हो। अच्छा। तो उसके कारण वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम आपको दे देते हैं। तो उसमें ईदर यू गेट सैलरीड पोजीशन और यू गेट स्कॉलरशिप्स। वो दोनों टाइप के एप्लीकेशन उनकी वेबसाइट्स पे आती है, वो जॉब्स एडवर्टीजमेंट करते हैं कि दिस टाइम दिस डिपार्टमेंट हैज दिस 3 पीएचडी इन लॉ दे आर लुकिंग फॉर। तो उसके अंदर वो आप फैकल्टी ढूंढ लो, फैकल्टी से पहले कांटेक्ट भी कर सकते हो आप कि आप अपना रिसर्च प्रपोजल बनाना पड़ता है आपको। इसके लिए प्रपोजल 10 पेज का जो भी होता है, आप वो भेजो आप उस फैकल्टी को, पहले भेज दो, वो देख लेंगे, कमेंट कर लेंगे। फिर उसके बाद वो एप्लीकेशन के अंदर आप डाल के दे दो। जब आपका इंटरव्यू होगा, मे बी लाइक दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द इंटरव्यू। मेरे इंटरव्यू के अंदर 7 people were there।
सर क्या पूछा उन्होंने? काफी चीजें थी, लाइक इट वाज 45-50 minutes interview in my PhD, and like everything, like from my Jindal experience to my Amazon experience, my LLM experience, post work experience in India, पास 5 साल से क्या किया मैंने, जो research articles लिखे वो क्यों लिखे, what was like the conclusion or like how did it contribute, वो सारी चीजें थी in short here and there, like you know इस टाइप का था। and ऐसा कुछ नहीं था कि out of था, जो भी चीजें मैंने की है उससे पूछा, वो ये पूछा मुझसे, like you know कि मैंने क्या किया, जो मैंने उन्हें दिए डॉक्यूमेंट, CV जो दी और जो लिखा मैंने उन्हीं में से ही पूछा, उन्होंने कुछ बाहर से नहीं पूछा। सर यूएस के मुकाबले यूरोप में टीचिंग पैटर्न या पैटर्न स्टाइल डिफरेंट कैसे? जैसे आपका तो पीएचडी प्रोग्राम है, सो यू ऑब्जर्व कि मास्टर्स के बच्चों को वहाँ पे कैसे पढ़ा रहे हैं, सो इज देयर एनी स्टार्क डिफरेंस कि जो यूएस में पढ़ा रहे हैं और यूरोप में पढ़ा रहे हैं, या फिर मोर और लेस सेम ही रहता है? नहीं, मोर और लेस ज़्यादातर सेम होता है, बस वो स्पेशलाइजेशन में होता है कि कई यूनिवर्सिटीज़ आपको एक्सटेंशंस भी प्रोवाइड करती है, जैसे मेरा एक्वाडोर वाला था वो, तो कई यूनिवर्सिटीज़ वो बोलती है भाई ठीक है पूरा ईयर आपको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही रहना है, ये भी काम वाम करना है, ये भी सब्जेक्ट्स लेने, बट कई बोलती है कि भाई यूएन के साथ भी हम तुम्हें इंटर्नशिप दिलाते हैं, वो पार्ट ऑफ द एलएलएम है। अच्छा, तो वो चीज़ें तो आपको देखना है कि आपको किधर जाना है, आपको बाहर का भी काम करना है, आपको वेदर यूएन के साथ बाद में काम करना है, तो फिर उस यूनिवर्सिटीज़ को चूज करोगे जो एक्सटेंशिप प्रोवाइड करवा रही है, आपके कनेक्शंस बनेंगे, वो आगे भी काम आएंगे। Correct. तो इस हिसाब से बाकी ऑन ऊपर नीचे ज्यादातर सेम ही है, यूएस, यूरोप, यूके, कनाडा, हाँ वैसे सेम ही है। So what's the better place to live? Which one is better place to live, कि यूएस या फिर यूरोप? Yeah, that is because both Lewis and Clark is in Oregon, Portland. It's one of the green state in US. आप 1 घंटे इस डायरेक्शन में जाओ, you will find rivers. One hour you drive in that direction, mountains, beaches, everything like you know surroundings है। तो इतना अच्छा था, calm, peacefully. I really had like hikings पे जाता था मैं forest के अंदर, like it was really great experience. Sweden में? Now Sweden also is like similarly very green country, have very forested land. I live on an island there. अच्छा, Baltics के अंदर है island named Gotland. So there I base, but Uppsala में like हमारा law department, and there also I go up and down. So it's life wise I think I enjoyed both the places. Yeah, I can't like you know. Okay sir, any final tips for the budding law students who are willing to pursue their masters from overseas? हाँ, तो एक तो like you know अब जो CV है बेसिकली आप उसको उस तरह से ड्राफ्ट करो, मेन चीज़ें होनी चाहिए आपके, पब्लिकेशंस हो गए, आपका वर्क एक्सपीरियंस हो गया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई, फिर आपका जो SOP है और कनेक्शंस जो LOR जो मिलेंगे वो आपको आपके पुराने कनेक्शन से मिलेंगे। तो उन चीज़ों पे आप हमेशा 30 से 34 साल से आप स्टार्ट कर लो इस चीज़ पे फोकस करना, ठीक है। तो जब 5वें साल तक आओगे तो आपके पास सब्जेक्ट्स भी होंगे, कुछ इलेक्टिव्स ले रखे फील्ड में, जिस फील्ड में करना चाहते हो, आपके पास रिसर्च भी है, आपके पास कुछ पब्लिकेशंस भी है जो आप आगे 5वें साल के बाद आगे जा परस्यू करने। तो ये चीज़ें ऑलवेज कीप इट बैक ऑफ योर माइंड, ठीक है। फिर उसके बाद लॉ यूनिवर्स की तरह है, ठीक है, लॉ इज ए यूनिवर्स इन इटसेल्फ। तो सो मैनी ऑप्शंस, लिटिगेशन भी है, कॉर्पोरेट भी है, रिसर्च भी है, एकेडमिक भी है, पॉलिसी भी है। तो ट्राई टू एग्जामिन योर इंटरेस्ट कि आपको किसके अंदर लास्ट 2 years, मैं नहीं बोलता पहले साल से करो, मैं बोलता हूँ 4th year एंड 5th year इन चीज़ों पे फोकस करो। ये करोगे तो आगे तुम्हें मास्टर्स के लिए काफ़ी हेल्प करेगी। एंड फाइनली ऑलवेज चैलेंज करो अपने आप को, क्वेश्चन करो अपने आप को, डाउट करो अपने आप को। और like you know a person like someone once beautifully told me that as long as you are not a tree, you are free to go anywhere in the world. So keep that, like you know I'm available on LinkedIn, and please feel free to connect, ask your queries, ask your doubts, guidance, anything मैं available हूँ, जहाँ तक हो सकता है मैं I will always happy to help. ठीक है सर, हम आपके आइडिया डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, and do ask diligent questions after doing your research. And one more thing, if anyone is interested in my Uppsala research also, my recent article has been published by Oxford University Press, Journal of Environmental Law, तो वो ओपन एक्सेस है सर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप मेरे को भेजना डाल देंगे। सर ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका इस पॉडकास्ट का? You know man, you are doing such a great work, no really, like you know जो ये चीजें हमेशा फिर वो रहता है ना कि लाइक जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल में हर कोई जा नहीं सकता। Correct. वो अब स्कॉलरशिप्स एंड एवरीथिंग इज देयर, बट ये नॉलेज जो है दिस इज फॉर एवरीवन, चाहे वेरेवर इन एवरी सिटी इन इंडिया आई वुड से, चाहे वो गांव में पढ़ रहा है, चाहे वो शहर में पढ़ रहा है, चाहे इंग्लिश स्पीकिंग कॉलेज में पढ़ रहा है, चाहे हिंदी स्पीकिंग में पढ़ रहा है, ये नॉलेज हर कहाँ के और उसको एक्सेस होना चाहिए। ये चीजें जब खुद को पता चलती है तो स्टूडेंट खुद को आगे बढ़ने के चांसेस मिलते हैं अपने आप, लाइक यू नो। तो कई कबार लाइक जब लैक ऑफ नॉलेज के कारण कोई जब पीछे रह जाता है ना, दैट इज द वर्स्ट आई फील। तो लैक ऑफ नॉलेज आई डोंट लाइक। नॉलेज हमेशा स्प्रेड करो, जितना करोगे डबल होएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।